ٹھیک ہے جی، اور سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ اس وقت جو ہو رہی ہے کل کی ہائی لائٹ تھی اور بہت سرپرائزنگ بھی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری جو کہ کچھ عرصہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم سے آتے ہیں کسی دھماکے دھار انٹری کی صورت میں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ کل ان کی جو انٹری تھی وہ بڑی زبردست ایک ملاقات کی صورت میں تھی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے درمیان ہوئی۔ دونوں پرانے کھلاڑی سیاست کے کل ملے، اہم ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ گزشتہ دنوں سے ہم اگر بات کریں تو آصف علی زرداری لاہور میں ہی براجمان ہیں، آپ کو بتایا تھا ہم نے، اور ان دنوں میں انہوں نے کئی سیاسی ملاقاتیں کی ہیں۔ گزشتہ روز اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اہم اتحادی بھی ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، بلاول ہاؤس لاہور پہنچے اور آصف علی زرداری سے یہ اہم ملاقات کی۔ بالکل، دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں پنجاب ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سیاسی مبصرین اس ملاقات کو مستقبل کی سیاست کے حوالے سے غیر معمولی ملاقات قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کے رہنماؤں نے سابق صدر سے رابطے کیے ہیں اور آئندہ عام انتخابات سے پہلے جہانگیر ترین گروپ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا بھی امکان ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں انتخابی اصلاحات کی تو گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ الیکشن کمیشن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، الیکشن کرانے کا طریقہ کار گورنمنٹ نے طے کرنا ہے۔ پارلیمنٹ جو بھی قانون سازی کرے گی الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو آئین سے متصادم معاملات ہیں، ان قوانین پر فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا، یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کا، جن کی سٹیٹمنٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ انتخابی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے، گورنمنٹ نے بل کو سینٹ میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے گورنمنٹ کا یہ فیصلہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ سینٹ میں انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن سے رابطہ کیا جائے گا۔ تاہم دوسری جانب اپوزیشن انتخابی قانون سازی کو ہر سطح پر چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسی حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی تجویز کردہ آل پارٹیز کانفرنس کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ANP نے بھی APC میں شرکت کی حامی بھر لی ہے اور APC جولائی کے پہلے ہفتے میں بلائے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے سیاسی تانے بانے کن نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں، صورتحال کس جانب جا رہی ہے، بالخصوص اہم ملاقات کے حوالے سے بہت مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ کچھ اہم سیاسی شخصیات جو پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی کا حصہ بنی، اس کے بعد یہ میٹنگز ہونا کس جانب صورتحال کو لے کے جائے گا۔ امتیاز گل صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ذرا رابطہ ہو جائے اور ان کا ہم تجزیہ پروگرام میں شامل کر لیں، لیکن جیسا کہ ہم کل کی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب میڈیا سے بات چیت کیے بغیر اس ملاقات کے بعد چلے گئے، انہوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی، یقینی طور پہ اوائڈ کرنا چاہتے تھے جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو مسلم لیگ کاف ہے یہ بڑی اہم اتحادی رہی ہے پیپلز پارٹی کی ان کی حکومت کے دوران اور نائب وزیر اعظم کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں اور سینئر ممبر کیبنٹ کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں پرویز الہی صاحب، سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹرن ہو سکتا ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹ سچویشن رہی ہے جس پہ کچھ ناراضگیاں بھی رہی، کیونکہ اب یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا اہم اتحادی بھی ہیں اور کچھ ناراضگی رہی، کچھ مطالبات تھے، پھر آن اینڈ آف ان کو منایا گیا، بہت سارے معاملات لوگ آئے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب کہ آپ نے ایکسپریسو میں جوائن کیا۔ کل کی سب سے اہم ہائی لائٹ جو تھی وہ آصف علی زرداری اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی ملاقات تھی اور یہ ملاقات کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم تھی اور غیر معمولی بھی ہے، سیاسی مبصرین کہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس ملاقات کو کیا اس کا پرپس ہو سکتا ہے، اس کے تانے بانے کیا ملتے ہیں؟ 3 سال کے ہنگاموں کے بعد، اکھاڑ پچھاڑ کے بعد اب کچھ تمام بڑی جماعتیں جو ہیں شاید وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ کوئی مل بیٹھ کے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جائے، اسی لیے زرداری صاحب سامنے آئے ہیں۔ اپنے سابق وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بڑے سیاسی خانوادے یا گھرانے ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکومت کی طرف سے اصلاحات وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکٹورل اصلاحات، اقتصادی اصلاحات، تو وہ اس سلسلے میں شاید پرویز الہی صاحب اور جیسے جو دوسرے رہنما ہیں اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں آمادہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پارلیمان کے اندر وہ آئیں اور اصلاحاتی عمل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 بڑے سیاسی رہنماؤں کا ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، معمول کا حصہ ہے، لیکن یہ غیر معمولی بات اس وقت لگتی ہے جب
सुबह शाम तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वुज़रा हैं, वो सिंध गवर्नमेंट पे उनकी करप्शन पे तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब हिमसेल्फ तनकीद करते हैं, और उसी गवर्नमेंट के अहम इत्तेहादी और उनके पंजाब असम्बली के स्पीकर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, जिनको सुबह शाम वो हिट लिस्ट पे रखते हैं, जाके लाहौर में बैठ के उनसे मुलाकात कर लेते हैं और बड़ी लंबी मुलाकात कर लेते हैं। तो खबर तो है, अहम कुछ ना कुछ तो लगता है ऐसा। इम्तियाज गुल साहब जी देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ हो, लेकिन ये अब दो मुख्तलिफ इशूज हैं। जो करप्शन की बातें हैं वो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब उनके साथ ही कुछ इस मामले में ज्यादा ही बात कर चुके हैं। मेरा अपना मौक़िफ़ यह है कि अगर इस करप्शन तो बिल्कुल है, वो आपको नजर आती है, वरना कराची हैदराबाद कूड़े का ढेर न बनते, पानी का मसला वहाँ पे ना होता, थर में बच्चे ना मर रहे होते। लेकिन इस मसले पे 3 साल से, बल्कि 3 साल से ज्यादा से वज़ीर आज़म और उनके साथी बहुत ख्याल आराई कर चुके हैं। अब उस पे तवज्जो हटा के असल तवज्जो जो है आपने आइंदा पे मरकूज करनी है कि मुस्तकबिल में जितने भी लूप होल्स हैं, जो करप्शन के रास्ते हैं, उसको बंद कैसे करना है। क्योंकि 3 साल में मुकदमे बहुत बने हैं, नैब ने रेफरेंस भी बनाए हैं। आपको मालूम है हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें किस तरह बहुत बड़े बड़े, इवन किसी ने अगर दिन दिहाड़े कत्ल भी किया हो वो भी अपनी जान छुड़ा लेता है, क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं, बड़ी बड़ी फीसें हैं, और वकील आपस में मिले होते हैं, वकील जजों के साथ मिले होते हैं। तो ये कोई मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को अब जो लूप होल हैं इस निज़ाम के, और उस पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आपने गर्दान पकड़ी हुई कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इनको हमने ये कर। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, एक तासुर पिछले कुछ अरसे से हर सियासी जमात का हक होता है कि वो अपनी सियासी खत करके दिखाए या अपने आप को इस तरीके से दिखाए कि आने वाले किसी भी निज़ाम के लिए सबसे रेलेवेंट जमात वही है, या एस्टेब्लिशमेंट की नजरें अब उसकी जानिब हैं और उसको सपोर्ट हासिल होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से खास तौर पर ऐसा एक तासुर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और समा वो तासुर ठीक भी है। जैसे कि कुछ बड़े सीनियर बलोचिस्तान के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होना, पंजाब के रहनुमाओं का की स्टेटमेंट्स कुछ प्रो पीपल्स पार्टी आना, और अब हमने जहांगीर तरीन के हवाले से भी अपने देखने वालों को बताया, आपके पास भी खबर होगी कि ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बिसात भी बुनी जा रही है। तो क्या हम ये समझे कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेवरेट आफ्टर इमरान खान, और वो इसी तासुर को पुख्ता करने के लिए अपने पुराने सियासी हलीफों को भी साथ मिला रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं? देखिए, अगर आप इमरान खान के माइंडसेट को देखें कि उनकी सोच क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, वो एक बहुत ही, उसको आप जिद्दी भी कह सकते हैं, बहुत डिटरमिन्ड भी कह सकते हैं। उनका अपना एक माइंडसेट है, और उन्होंने अपने लिए जो एक लाइन खींची हुई है अपने और दूसरे रहनुमाओं के दरमियान, मेरा ख्याल है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनको मजबूर किया गया तो वो मेरा ख्याल है अपना ओहदा ही छोड़ देंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि जो पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से बार बार खबरें आ रही हैं, फीड की जाती हैं मीडिया में कि एस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म के दरमियान उस्मान बुज़दार के मसले पे इख्तिलाफात हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जिस दिन भी उनको मजबूर किया गया कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, वो कहेंगे ये सामान, ये हुकूमत है और ये मामलात हैं पाकिस्तान के, आप खुद ही संभाल लें। तो मेरा अपना ख्याल नहीं है कि वो इन तमाम रहनुमाओं के हवाले से अपने ख्यालात तब्दील करेंगे। अलबत्ता जरूरत समर की है, खुद वजीर आजम के लिए भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करें, क्योंकि इतने बड़े मुल्क 220 मिलियन के मुल्क को चलाने के लिए आपको बहरहाल लचक का मुजाहरा करते हुए ये ताल्लुकात जो है, सियासी ताल्लुकात, वो मैनेज करने होते हैं सूबों के दरमियान, सियासी रहनुमाओं के दरमियान। तो आप जो जहांगीर तरीन साहब या अब्दुल जनरल कादिर बलोच की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को ये सोचा जा रहा हो कि बलूचिस्तान के जो मामलात है उसमें पीपल्स पार्टी को ज्यादा जरा शेयर दे दिया जाए ताकि वो मामलात कुछ बेहतर अंदाज में चलाए जा सके। इससे ज्यादा, और जो जहांगीर तरीन साहब की बात है, अगर तो जहांगीर तरीन साहब मैं समझता हूँ वो चले गए पीपल्स पार्टी में, तो जो उनकी एक साख है, जो इज्जत है, मैं समझता हूँ वो उससे भी वो हाथ धो लेंगे, क्योंकि जी उनका अपना एक वो बड़े डिसेंट नोबल इंसान है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी तवील रफाकत जो इमरान खान या पीटीआई के साथ है वो कुर्बान कर देंगे, मैं इस वजह से कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस बना हुआ है। ठीक हो गया। इम्तियाजुल साहब, अगर हम थोड़े से इंतखाबी एक तरमीमी बिल की बात करें तो कल फवाद चौधरी साहब ने बहुत खुलकर क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन को, कहा है कि सियासत न करे, अगर पार्लियामेंट में कोई चीज होती है मंजूर तो उसके हवाले कानून साजी होती है तो उस पर अमल दरामद कराया जाए, ना कि उस पर सियासत की जाए। इलेक्शन कमीशन के एतराजात आपके नजदीक कितने दुरुस्त है? देखिए, मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस अंदाज में बात कर रहे हैं गोया वो खुद कानून है।
बिलाशुबा वो एक कानून के मातहत हैं, वो कानून जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। यानी वही बात कर रहे हैं जो कि मौलाना फजल रहमान सिराजुल हक जैसे लोग करते रहे हैं जब वो ब्लास्फेमी कवानीन की बात करते हैं, जो गुस्ताखी तौहीन रिसालत से मुताल्लिक कानून है, वो कानून भी पार्लियामान का बनाया हुआ है। पार्लियामान लोगों ने इसीलिए चुनी होती है कि उनके हक में उनके हवाले से कानून साजी करे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये एतराज कि जी फलां चीज खिलाफ आइन है, फलां चीज खिलाफ आइन है, तो बाबा आइन पार्लियामान ने बनाया हुआ है। अगर पार्लियामान समझती है, पार्लियामानी नुमाइंदे समझते हैं कि किसी कानून में तब्दीली की, तरमीम की जरूरत है, तो वो क्यों नहीं करेगी? अगर ऐसा ना हो तो क्या फिर पार्लियामान का मकसद क्या रह गया? ये कोई इलेक्शंस के हवाले से, ब्लास्फेमी के हवाले से जो कवानीन है कि वो कि आसमान से वदियत नहीं हुए हैं, वो पार्लियामान ने बनाए हैं और पार्लियामान को मुकम्मल इख्तियार है। उस पर एतराज़ात इनके हो सकते हैं, लेकिन अगर वाकई कोई ऐसा एतराज हुआ जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम होगा तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। ठीक है, बहुत सारे मामलात के अंदर ये इस मामले के ऊपर भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बात नहीं हो रही है। तो हम हुकूमत की जानिब से एक स्टेटमेंट इम्तियाज गुल साहब जरूर आई है कि हम इंगेज करेंगे अपोजिशन को और बातचीत करेंगे, लेकिन तकरीबन किसी मामले पे भी हमने तो नहीं देखा कि कोई कंसेंसस हुआ हो। इवन आपको याद होगा जो कश्मीर जैसे हसास मामले के ऊपर जॉइंट सेशंस भी हुए थे, वो भी हुल्लड़बाजी का शिकार हो गए थे। पिछले 2-3 साल में तो ये सूरत हाल बहुत ही बढ़ गई और बजट इजलास तो कौन भूल सकता है जिसमें किताबें चली और लोगों को मारा गया, खवातीन को भी मारा गया। अब तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि कोई निगोसिएशन दोनों तरफ से हो सकती है इस अहम मसले के ऊपर ताकि 2023 के इलेक्शन मुतनाज़े ना हो? देखिए, एक तो बात है कि इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे जो पार्लियामेंट में देखने में आए दोनों तरफ से। जिस तरह किताबें, बजट की दस्तावेजात एक दूसरे पे उठा उठा के फेंकी गई, उससे मुझे एक बतौर पाकिस्तानी बहुत शर्म आई। दूसरी बात यह है जो अपोजिशन की तरफ से हमें ये जहन में रखना चाहिए कि एक तरफ वर्ल्ड बैंक, IMF वो सारे कह रहे हैं और जो फैसलाबाद में या गुजरात में या कराची में इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इक्तिसादी एक्टिविटी है वो पहिया काफी गैर मामूली तौर पे चल रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी या इक्तिसादी बहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, और ये मैं आदाद शुमार की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, ये हम बात करते रहते हैं सनतकारों से भी, मजदूरों से भी, तो उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 6-7 वर्षों के दौरान इतनी इक्तिसादी सरगर्मी देखने में नहीं आई। और ये वर्ल्ड बैंक और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। लेकिन अगर आप अपोजिशन को देखें, उनकी आप तकरीरें सुन लें, उनके नजदीक पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के किनारे पहुंच गया है। यानी वो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि बहुत अल्लाह ने मेहरबानी की, मौसम बहुत अच्छा रहा, गुज़श्ता साल हमारी कपास और गंदम बहुत बम्पर क्रॉप जिसको कहते हैं, इंतहाई बेहतरीन फसलें हुई है ना। तो वो भाई आप ये बात तो कबूल करें, उसमें इमरान खान या PTI का क्या कमाल है अगर मौसम अच्छा रहा है, अल्लाह ने मेहरबानी की है पाकिस्तान के। ये गुल साहब आप तो खुद खैर करते भी रहे और टीवी के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पता है। ये हर दौर में सियासत होती है ना सर, इकोनॉमी के ऊपर। इसमें ये नहीं देखा जाता कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। PTI भी करती रही है, अब नून लीग भी कर रही है। अफसोसनाक। देखिए, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बतौर पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में 4 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, बतौर पाकिस्तानी हमें खुश होना चाहिए अगर इक्तिसादी एक्टिविटी बहाल हुई, क्योंकि उससे जो बेचारे लाखों बेरोजगार मजदूर थे उनको रोजगार मिल गया है। इसमें बुरा मानने की और इसका एतराफ करने में क्या बुराई है? अगर पाकिस्तानी रुपए की कदर में तकरीबन 10-15% अगर बेहतरी आई है, 10% के करीब, उसमें क्या बुराई है? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं है? तो जब तक अपोजिशन मैं समझता हूँ अपने इस रवैये को रैशनलाइज नहीं करेगी, उस वक्त तक ये बातचीत का, डायलॉग का मामला यूं ही लटकता रहेगा। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, वजीर आजम के दौरे बरतानिया के हवाले से भी बात करें तो आइंदा माह होना था यह दौरा था। हम इत्तलात ये आ रही है कि बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के हवाले से बात करने से इनकार किया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पोस्टपोन हुआ है उनका ये टूर। तो आपको क्या लगता है कि इनका ये दौरा जो मुलतवी हुआ है वजीर आजम इमरान खान की, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या इम्कान है? देखिए, मुझे ये लगता है ये बहुत जो जियो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसका हिस्सा है। अब अंदाजा लगाइए कि भारत में जब रोजाना कोरोना के 3 लाख से जायद केसेस डिटेक्ट हो रहे थे, वहां पे अमवात की तादाद 3000 रोजाना के करीब थी। उस दौरान भी भारत से बरतानिया को तकरीबन 100 के करीब फ्लाइट्स गई हैं, जबकि
उस पे पाबंदी जो थी वो कोई 20-21 दिन के बाद लगाई गई। पाकिस्तान पे उससे पहले पाबंदी लगाई गई, यहाँ से जो फ्लाइट थी पाबंदी लगा दी थी। तो अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें, जो कोविड रेड लिस्ट जो है, पाकिस्तान उसमें पहले आया, भारत बाद में आया, हालांकि अब हमारा कोई तनासुब ही नहीं, हमसे 20 गुना उनके ज्यादा केसेस थे और अफवाह थी। तो इसको अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चूंकि बरतानिया अमेरिका के बहुत करीब है, उनको पूडल भी कहा जाता था जब टोनी ब्लेयर वजीर आजम होते थे वहाँ के, तो उसमें एक मैं समझता हूँ कि उनके इस इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान की ज्यादा नहीं है, और चूंकि पाकिस्तान के वजीर आजम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है इक्तिसादी तौर पे। अब वो दूसरी तरफ आपने देखा G7 का जो बड़े ममालिक, 7 बड़े ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा टारगेट किया है, चीन को मुखातिब करके कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमने अब चीन का मुकाबला करना है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके मुकाबले में अपने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करना है। तो ये मैं तो इसको इस बड़ी जियोपॉलिटिकल तनाजुर में देख रहा हूँ कि चूंकि पाकिस्तान चीन बहुत करीब आ गए हैं जियो स्ट्रेटेजिकली, उसकी वजह से अब हर तरफ से इनके गिर्द घेरा तंग करने की लेकिन कोशिश गुलशन, की जा रही है। दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम अपने हर तकरीबन दूसरे बयान में ये दावा भी तो करते हैं कि वेस्ट को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, मैंने उम्र गुजारी है। वही वेस्ट है जहां पे वजीर आजम ने उम्र गुजारी है। बोरिस जॉनसन उनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनके साथ सेल्फीज बनाते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं उनकी इन्वायरमेंट के ऊपर जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट के अंदर 3 बार कहा कि आई सैल्यूट पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव। उसके बावजूद अगर इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात नहीं होती और इस नहज तक नहीं होती कि हमारे वजीर आजम को दौरा पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो नवाज शरीफ तो सिर्फ एक नेशनल मसला नहीं है या नेशनल इशू नहीं है जिस पे बात होनी है, मसाइल तो और भी बहुत सारे हैं। तो आपको लगता है कि अगर महज इस इशू को एक मौजू बनाकर अगर इस दौरे को पोस्टपोन किया जा रहा है तो मे बी कहीं ना कहीं हमें कौमी सतह पर मजीद नुकसान हो सकता है? हम ताल्लुकात तो नहीं तोड़ सकते, टिल्ट सब ममालिक अपनी जगह होता है, फॉरेन पॉलिसी सबकी अपनी है। देखिए, ताल्लुकात के लिए आप किसी की मिन्नत समाजत तो नहीं कर सकते ना। अगर किसी दूसरे मुल्क ने जानबूझ के ऐसी सूरत हाल पैदा की है जिससे साफ एक तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, तो ये जो हमारा जो वजीर आजम है, मैं नहीं समझता कि ये कहीं जाके मिन्नतें तरले करेगा उसकी कि जी आप हमारे साथ, अमेरिका के साथ हमने 20 साल ताल्लुकात रखे हैं। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 साल के अंदर उतने पैसे दिए हैं जितने चीन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, 29-30 अरब डॉलर के बराबर? क्या बरतानिया ने इस किस्म का कोई काम किया है? तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन, दो टोक पोजीशन लेके तमाम ये जो सियासी मामलात हैं इन पे आगे बढ़े। किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। जब तक अगर चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो आमादा हैं अपने यहाँ पे सरमायाकारी करने पे, हमारी मजीद मदद करने पे, तो हमें फिर कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि कोई 400 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो ईरान की जानिब जा रहे हैं, चीन का टिल्ट उस जानिब ज्यादा है, पाकिस्तान थोड़ा। लेकिन चाहे मगोइयां हैं, इस पे बात होती रही कि गुल साहब थैंक यू वेरी मच। टॉपिक ऐसा है कि शायद 1 घंटा भी गुफ्तगू चलती रहे तो खत्म ना हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और इस अहम तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर तजियाकार इम्तियाज गुल साहब एक्सप्रेसो में इज़हार ख्याल करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।